اس کے لیے پورا ثبوت جو ہیں اس شکل میں لانے کے لیے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کیسز چلائے جا سکیں، ایف آئی اے کو مینڈیٹ دیا جا رہا ہے کہ فورینسک انویسٹیگیشن کرے اور 90 دن کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کریں، جس کی بنیاد کے اوپر پھر آگے اس کے پروسیکیوشن کا کام شروع کیا جا سکے۔ جو ایریاز ہیں اس کے اندر جن کو دیکھنے کے لیے کہا گیا ہے، قانون کے مطابق جو کم سے کم انوینٹری رکھنے کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ہیں انہوں نے وہ اس کو پورا کیا یا نہیں، جو سیلز رپورٹ کی گئیں کیا واقعی میں وہ سیلز ہوئیں یا حقیقت میں جو سیلز ہوئیں اور جو کاغذ پہ رپورٹ کی گئی ان کے اندر فرق تھا، اور اگر تھا تو کتنا تھا، اور کس نے یہ ایک مجرمانہ فعل کیا، کیا پروڈکٹ کی ذخیرہ اندوزی کی گئی اور اگر کی تو کس نے کی۔ اور یہ ظاہر ہے یہ سب میں وہ چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں جو رپورٹ کے اندر، جس کو قانون کی زبان میں یا انگریزی میں پرائما فیسی کہتے ہیں، یہ اسٹیبلش ہیں کہ یہ کمزوریاں ہوئیں۔ تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہوئیں تو وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو ثبوت اس شکل تک لے جانے کے لیے جس کی بنیاد کے اوپر کورٹ کے اندر کیس کیا جا سکے اور سزا دلوائی جا سکے۔ ایک فوری طور پر اس بحران کا حصہ تو نہیں، صرف اس بحران کا نہیں، لیکن کمزوریاں کچھ سسٹم کے اندر چلی آ رہی تھیں جس کے اندر بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، وہ بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے۔ مثلاً پروویژنل مارکیٹنگ لائسنسز کے ایک ٹیمپرری مارکیٹنگ لائسنس دے دیا جائے اور اس کے بعد اس کا ناجائز استعمال کیا جائے، غیر قانونی ہاسپٹیلٹی ایگریمنٹس کیے جائیں، یعنی کہاں پہ رکھی جائے گی وہ پروڈکٹ اس کے اوپر، غیر قانونی ریٹیل آؤٹلیٹس پہ بیچا جائے پروڈکٹ، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی اس فورینسک کا حصہ بنائی گئی ہیں اور اس کے اوپر بھی قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کرمنل ایکشنز لینے کے لیے کہا گیا ہے۔ میں آگے آؤں گا کہ وہ جو صرف لکھا ہوا ہے کہ جو تھوڑی سی سزائیں ہیں کوئی جرمانہ کر دو، وہ نہیں صرف۔ ایک یہ بھی الزام ہے رپورٹ کے اندر، اس کے بارے میں کور کیا گیا ہے کہ تیل کی شپ آ گئی، وہ آؤٹر اینکریج کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اور اس کو جان بوجھ کر برتھ نہیں کیا جا رہا تاکہ تاخیر کے ساتھ اس کو برتھنگ کی جا سکے، اور جب نئی قیمت کا اطلاق ہو، جو زیادہ قیمت ہوگی، وہ پھر اس کی برتھنگ کرائی جا سکے، جو ظاہر ہے اگر اس مقصد کے لیے کی گئی تو وہ غیر قانونی فعل ہے، اور اس کی بھی نشاندہی ہے رپورٹ میں، اس کی بھی فورینسک انویسٹیگیشن اور پن پوائنٹنگ کرنی ہے کہ کس کے خلاف قانونی کارروائی کر کے یہ کیا جائے۔ اور غیر قانونی تیل کی جو سیل ہے اس کے اندر جو بھی ملوث ہے اس کے بھی کیسز جو ہیں اس رپورٹ کے اندر دیے گئے تھے۔ ان تمام چیزوں کو فورینسک انویسٹیگیشن تحقیقات کے اندر کور کیا جائے اور کرمنل لائبلٹی اسٹیبلش کرنے کے بعد پوری طاقت جو ہے قانون کی استعمال کی جائے اور کیسز اور یہ صرف جرمانے جیسے میں نے کہا اس کی نہیں بات ہو رہی، یہ پھر ہتھکڑیاں لگیں اور لوگ جیل کے اندر جائیں۔ جو ادارے، سرکاری ادارے، ظاہر ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز، جو ریٹیل پمپس ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان کی تو فورینسک ہونا ہی ہے، لیکن اس فورینسک انویسٹیگیشن کا حصہ یہ بھی بنانا ہے کہ وہ سرکاری لوگ کون تھے جنہوں نے معاونت کی۔ ہم اس کے اندر تفریق کر رہے ہیں وہ کہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جس نے ان مجرمانہ جو ایکشنز ہیں اس کے اندر معاونت کی اور اس کے شراکت دار بنے تو ان کی بھی نشاندہی کرنی ہے۔ اس کے اندر پیٹرولیم ڈویژن کے جو لوگ ہیں، پوری چین جو بھی اس کے ایکشنز کے اندر، ڈیسیشنز کے اندر انوالوڈ ہیں، ان کی انویسٹیگیشن، اوگرا جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے ان کی انویسٹیگیشن، زیادہ تر یہ جو معاملات ہیں اور جو برتھنگ پلان سے ریلیٹڈ جو میں نے معاملات کہے اس کے اندر منسٹری آف میریٹائم افیئر اور پورٹ اتھارٹی کے آفیشلز جو ان فیصلوں کے اندر براہ راست انوالو ہوتے ہیں ان کی انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے۔ اس 90 دن کا پیریڈ جس کے اندر یہ فورینسک انویسٹیگیشن ایف آئی اے نے مکمل کرنی ہے، اس پیریڈ کے اندر وزیر اعظم نے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر پیٹرولیم کے جو ہیں ندیم بابر صاحب، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے قلمدان سے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، اور اسی طریقے سے سیکٹری پیٹرولیم جو ہیں ان کو
रिपोर्ट टू एस्टैब्लिशमेंट का ऑर्डर दिया जाएगा जैसे ही उनकी रिप्लेसमेंट का फैसला हो जाता है, लेकिन इस फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के शुरू होने से पहले। नदीम और मतलब कि उसको स्टेप डाउन कह दिया गया, ऑर्डर मांग लिया। जी मुझे मुकम्मल तो करने दें मैं। हाँ, टिकट गलत ना चला देना कि क्या नहीं। अच्छा, हम ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पे मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई गैर कानूनी इक़दाम जो है वो नज़र आया है हमें या स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर से मुतालिक या सेक्रेटरी पेट्रोलियम से मुतालिक, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये फैसला किया है क्योंकि पूरी चेन की इन्वेस्टिगेशन होनी है, अरबों रुपए का कौम को, अवाम को नुकसान की तहकीकात हैं, इसलिए इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि कोई शायबा भी ना हो कि उस पर कोई असरअंदाज होगा जो इन फैसलों के अंदर शामिल हो सकता है इस चेन के अंदर, इसलिए ये दोनों हजरात को के लिए ये एक्शंस दिए गए हैं। दूसरी चीज जो है वो इंतजामी कार्रवाई है, ये तो क्रिमिनल एक्ट्स हैं। बाकी जैसे हमने कहा इसके रिपोर्ट के अंदर निशानदेही की गई है ऑपरेशनल फैसलों के अंदर कमजोरी, जो इंतजामी पोजीशंस के अंदर लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में कुछ के बारे में कहा गया कि उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है या उनके पास वो काबिलियत सलाहियत नहीं है कि उन ओहदों पर उनको बैठना चाहिए। वो तमाम इंतजामी फैसले जो हैं वो पेट्रोलियम डिवीजन को कहा गया है कि उसको देखें और जल्द अज जल्द उन फैसलों को करके भी प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करें। तीसरा और आखिरी इसका पहलू जो है वो ये है कि जो कानून है जिसके तहत ये सारा निज़ाम पेट्रोलियम का चलता है, उसके अंदर दो कलीदी जो हैं वो प्लेयर्स हैं। एक तो पेट्रोलियम डिवीजन है जिसके पास एग्जीक्यूटिव ब्रांच को जो रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा ओगरा है जो रेगुलेटर है। और जो कानून साजी की गई है उसके अंदर एक इबाम पैदा हुआ है कि जो मुख्तलिफ एक्शंस हैं उसके अंदर ओगरा की, रेगुलेटर की क्या जिम्मेदारी है और पेट्रोलियम डिवीजन की क्या जिम्मेदारी है। उस इबाम को ख़त्म करने के लिए एक कानून बनाया जाएगा और जो भी अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ताकि कोई इबाम ना रहे, बिल्कुल वाज़े हो कि किसके पास ये इख्तियार है और किसकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब भी इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें एक पहलू ये भी आया और हमने वो कैबिनेट कमिटीज़ के अंदर भी देखा कि ओगरा कहता था कि ये काम जो है ये तो पेट्रोलियम डिवीजन का करने वाला है, पेट्रोलियम डिवीजन कहता था ओगरा के करने वाला है, और दोनों जो है वो मुख्तलिफ कानून की शिक कोट कर रहे थे। सो उस इबाम को ख़त्म करने की भी ज़रूरत है ताकि आइंदा इस किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। उनके तमाम फैसले इस बुनियाद पर होते हैं और उनकी बिल्कुल वाज़े तरजीह ये है कि कैसे मैं पाकिस्तान के अवाम को बेहतर से बेहतर एक ज़िंदगी गुजारने का रास्ता मुयस्सर कर सकूं। और जहां बहुत सारे चैलेंजेस हैं ये करने के लिए, उसमें से एक ये भी है कि बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर कार्टेल बने हुए हैं, बड़े बड़े माफिया बने हुए हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर, जो कई सालों से नहीं बल्कि कई दहाइयों से मजबूत तर होते गए हैं, क्योंकि जो साहिब इक़्तिदार थे वो इनके सरपरस्त थे, इन माफियाज और इन कार्टेल्स के। और वजीर आजम ने ये बिल्कुल पहले से वाज़े कर दिया था, उसके लिए इक़दाम भी लिए गए। और अब आप देख रहे हैं, और बहुत ज़ाहिर लोगों के अंदर एक ये बात भी होती है कि हमने ये बातें पहले भी सुनी हैं, फिर हमने जब प्राइम मिनिस्टर ने रिपोर्ट करने को कहा, उन्होंने कहा ये तो फिर खूह खाते में डाल दिया, रिपोर्ट आ जाएगी। वो रिपोर्ट आ गई, वो पब्लिक भी कर दी गई। उन्होंने कहा अच्छा चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने पब्लिक कर दी, पहले कोई नहीं करता था, लेकिन चले हुआ तो सजा किसको मिली। तो अब वक्त आ रहा है सजाओं का, और वजीर आजम बिल्कुल वाज़े हैं, किसी सूरत में ये जो माफियाज और ये जो कार्टेल्स हैं जो पाकिस्तान की अवाम की जेबों से पैसा निकाल रहे हैं, किसी सूरत में वो उनको माफ नहीं किया जाएगा। और जब ये एक्शन होंगे, ये बड़े ताकतवर माफिया हैं, बड़े ताकतवर कार्टेल हैं, तो ये इतनी खामोशी से और इतनी आसानी से ये जो वजीर आजम के फैसले हैं उनको बर्दाश्त करके चुप करके घर नहीं बैठ जाएंगे। ये बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वजीर आजम तैयार हैं उसके लिए। और इसलिए इन तमाम कार्टेल्स को वजीर आजम की तरफ से पैगाम है कि आपका वक्त ख़त्म हो गया है और अब पाकिस्तान के अवाम का वक्त आ गया है। सो मैं इस पर इख्तिताम करता हूँ। शफकत महमूद साहब और शीरीन, आप यू वांट टू ऐड समथिंग? क्वेश्चन आंसर प्लीज। मुझे खास करके एक बड़ा आपने
वफाकी वज़ीर असद उमर इस्लामाबाद में मौजूद मीडिया नुमाइंदगान को ब्रीफिंग दे रहे थे। पेट्रोलियम बहरान पर जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसके हवाले से कहना असद उमर का ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ शुबों में माफियाज मौजूद हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर इनके खिलाफ एक्शन होगा, इन्हें किसी सूरत मुआफ़ नहीं किया जाएगा। पेट्रोलियम बहरान पर रिपोर्ट से मुतालिक मीडिया को आगाह करते हुए उनका कहना था कि रिपोर्ट हम मीडिया से भी शेयर कर रहे हैं, हम ये रिपोर्ट काबीना के सामने भी रखेंगे और मुख्तलिफ सिफारिश इसके अंदर पेश की गई हैं। इस वक्त क्वेश्चन आंसर सेशन हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इदारे हैं जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी वो इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम हुए। ये तो बिल्कुल वाज़ेह है ना। हमने सिर्फ इस जुमले से आगे जाना है। हमने तो बिल्कुल एग्जैक्ट मुतय्यन करना है कि कहाँ वो जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं अदा की गई कि अहल नहीं थे या उनके दिमाग में कोई इब्हाम था कि उनकी ताकत और इख्तियार क्या है, और कहाँ बराह रास्त उनके अपने ज़ाती मुफाद शामिल थे और जहाँ उन्होंने जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कोलूड किया इस चोरी के अंदर, इस डाके के अंदर। सो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का मकसद यही है कि हम सिर्फ जो है वो ये नहीं कहना चाहते, एक स्टेटमेंट एक नहीं इशू करना चाहते कि जी लोगों ने किया और आइंदा से ऐसा ना करें। वज़ीर आज़म का बिल्कुल क्लियर ज़हन है इसके अंदर। वो चाहते हैं, जैसे मैंने कहा, कि जो ज़िम्मेदार है और जो इस जुर्म के अंदर शरीक हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, वो जेल के अंदर जाए और उसको हथकड़ी लगे। जहाँ तक आपने नदीम बाबर साहब का है, हमने जैसे मैंने पहले कहा, हमारी कमेटी ने कोई ऐसी बात नहीं की है जिसके अंदर हम चाहे या सेक्रेटरी पेट्रोलियम या SAPM के बारे में हमने उनको कहा हो कि वो बराह रास्त किसी के जिम्मेदार हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये एक शफाफ तहकीक की एक रिक्वायरमेंट, ये एक उसके लिए लाजिम है कि ऐसा नजर आए कि उस सिस्टम के ऊपर वो नहीं बैठे हुए जिसके नीचे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो उस वक्त फैसला साजी की कुर्सी पे मौजूद थे। सिर्फ इतनी सी बात। जी मेहताब, आप क्या समझते हैं सर जी, आई वाश होगा सिर्फ क्या वाकई अगर देखें ना पेट्रोलियम डिवीजन में अगर उनकी जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी अदा ना करने के नतीजे में ये क्राइसिस आया, क्या सिर्फ ये आई वाश होगा या मुकम्मल समझा जाएगा वो मारे गए और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के बाद वही अंदर होंगे? देखें मेहताब, इसके अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा वही रिपीट करूंगा कि आपको तफरीक करनी पड़ेगी। एक ये है कि क्या किसी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की, वो एक अलग चीज़ है, और कौन शरीक जुर्म था। जो शरीक जुर्म था तो फिर तो हथकड़ी और जेल है उसके लिए। तो यही इसी के लिए, ताकि बिल्कुल इसके अंदर कोई इबाम ना रहे। और वज़ीर आज़म, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो नहीं रुकना चाहते थे, सिर्फ उसके ऊपर एक ज़बरदस्त स्टेटमेंट इशू हो, लोगों की नौकरी इधर से उधर हो जाए और बस उसके बाद फारिग हो जाए। इस दफ़ा वो बिल्कुल आखिर इख्तिताम तक जाना चाहते हैं। सर, ये क्वेश्चन है कि ये जो तहक़ीक़ात करेगा ये किस पीरियड से लेकर करेगा, क्योंकि ये काम तो काफ़ी अर्से से चला आ रहा है। पेट्रोलियम और और बहरान और ये माफियाज जो हैं, ये काफ़ी अर्से से यही मामला चला रहे हैं। कब से ये तहक़ीक़ात होंगी और क्या इसमें कोई वो लोग भी पॉइंट आउट हुए हैं जो ऊपर लेवल के हैं, जिससे आपने पॉइंट आउट किया, तो हुक्मरान भी इसमें जो है उनके सरपरस्त हैं, क्या उनको भी आपकी कमेटी ने पॉइंट आउट किया है कि उन लोग? देखिए, इस वक्त जो है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये इतनी लंबी फैल जाए कि उसके बाद जो है वो 5 साल तहकीकात ही होती रहें। ये है जो जून 2020 में क्राइसिस आया, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसमें से सिर्फ एक हिस्सा जो मैंने आपको कहा कि वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो मादी से चल रही थी प्रैक्टिस, लेकिन उसने इसको कंट्रीब्यूट किया, वो ये हिस्सा था जो प्रोविजनल मार्केटिंग लाइसेंसेस पे चल रहे हैं, इलीगल रिटेल आउटलेट है। और उसकी वजह मैं बता दूं, अनलॉफुल हॉस्पिटैलिटी एग्रीमेंट जो है, और उसकी वजह उसको शामिल करने की ये है कि एक बहुत बड़ा रीजन ये बना कि जिस वक्त आप ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट इसके पास किसके पास कितनी है, तो ये जो ऐसे इलीगल एक्शंस हुए हुए थे वो उधर जाके छुप गया। इसलिए वो वाला सिर्फ पार्ट कर किया गया है, नहीं इसके अंदर ये पिछले माजी के जो है वो इसके अंदर कवर नहीं किया गया।